Okay, so hello students of class 11th. We are going through NCERT biology book. In that, we are in chapter 14, where we are studying about respiration in plants. Now we will see aerobic respiration. Okay, we have seen anaerobic part of the respiration so far. Okay, and this part of respiration takes place in all cells, whether anaerobic and anaerobic. And the next part, that is step 2 जो हम बताए थे कल, समझ लीजिए एनर्जी प्रोडक्शन में 4 स्टेप हैं अगर, तो अब हम step 2 onwards we will see, and that comes under aerobic respiration. Okay. Aerobic respiration. See, I'll go through the book. ज्यादा कुछ आसान है, सब हम समझाए हैं, बहुत कुछ इसमें भी आगे आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा समझने में. See, for aerobic respiration to take place within the mitochondria, where it is taking place, glycolysis is taking place in, glycolysis is taking place. Where does it take place? कहाँ हो रहा है glycolysis? साइटोप्लाज्म में. And this aerobic respiration takes place in mitochondria. So glycolysis product is entering the mitochondria for further oxidation. Pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. Okay. The crucial events in aerobic respiration are the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 molecules of CO2. The passing on the electrons removed as part of the hydrogen atoms to molecular O2 with simultaneous synthesis of ATP. This I have explained already. क्या कह रहा है? So in the next part of the aerobic respiration, what is happening basically is complete oxidation of pyruvate. That means complete removal of hydrogen atoms. Pyruvate से सारा हाइड्रोजन निकल गया, and the carbon has liberated sequentially one by one. 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए molecules. In the next part, pyruvate is 3 carbon compound. After the removal of all hydrogen atoms, carbon bond has broken. In these steps of reactions. So it is the stepwise removal of all the hydrogen atoms. Complete stepwise and thereby releasing
3 CO2 molecules. This is called as complete oxidation of pyruvate. The second thing which is happening is the electrons are also extracted. Hydrogen is extracted in the form of proton. So electron remains in the skeleton, which creates the charge imbalance because we are taking the proton out. So that the leftover compound will be negatively charged. Okay. And then we are extracting the electrons also. So we are separating. ये जो हाइड्रोजन है ये हम as it is नहीं extract कर रहे हैं. Hydrogen means one proton and one electron. Not like this. We are extracting it out from the pyruvate in the form of electron अलग and proton separately. एक ही समय पर हम ये हाइड्रोजन एटम्स नहीं निकल रहे हैं. ये हाइड्रोजन एटम्स के भी जो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो अलग अलग टाइम पर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं. एक साथ होता तो एज ए हाइड्रोजन एटम एक्सट्रैक्ट होता, अलग अलग टाइम पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है. प्रोटॉन इज गेटिंग एक्सट्रैक्टेड and then electron is getting extracted separately. So the passing of the electrons, so in this case, the second event is the passing of electrons. Passing of the electrons, which is removed as part of the hydrogen atoms. अभी बताया आपको ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के पार्ट के रूप में अलग हो रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ नहीं, अलग अलग. पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 किसको पास हुआ? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ओके, दिस इज ऑक्सीजन का एटम, सिंगल ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव because it looks for 2 electrons and it is highly electronegative, so that's why it is very reactive. But this one is not very reactive. Okay, spontaneously it cannot react with any other element or compound. You have to give the energy to react this way. तो अंतर समझ रहे हो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन में? Here 2 electrons, सही समझो बढ़िया से, तो बता रहे ये ऑक्सीजन है. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सब आउटर मोस्ट वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. और इसे आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की to fulfill its valency. So it will share 2 electrons with others. Okay. तो ये देगा और 2 लेगा बदले, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर्ड नहीं है. इसका मतलब आउटर मोस्ट वैलेंसी में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है. शेयर्ड वाले कुछ जो नॉन शेयर्ड है उसको छुपा लिए, मान लो 4 electrons है, and these 2 electrons can be shared with other atoms. So that's why it is highly reactive. It can easily share the electron with other atoms. But if it is in the form of
molecule, then चार चार तो फिक्स है जो शेयर नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं। ओके, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उन्हीं को दर्शाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है शेयर करने लायक, और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है शेयर करने लायक, तो ये क्या करेगा, दो, ये मान लो पहला एटम है, दूसरा एटम है। पहला एटम दूसरे एटम को अपना दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, और दूसरा भी अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, शेयर हो गया। तो इसके पास चार थे जो शेयर नहीं थे, ये भी चार इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं थे। अब ये दो दो चार आठ हो गया। इट इज वेरी स्टेबल, दैट्स वाई O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो चार इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो दैट मीन्स देयर इज अ डबल बॉन्ड। one pair of electron is shared, single bond. Two pairs of electrons are shared, then double bond. Three pairs are shared, then triple bond. ये तो समझते होंगे, तो डबल बॉन्ड। तो दिस इज, तो हमारे वातावरण में भी ऑक्सीजन जो है इस O2 के फॉर्म में है ज्यादातर, मैक्सिमम। और हम इसी O2 को ग्रहण करते हैं, अपने फेफड़े में लेते हैं। यही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड होता है, ना कि ये। ओके, सो कल भी बताए थे आपको, ये इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास पास हो, फाइनली घूमते टहलते हुए बहुत सारे आयरन सल्फर सेंटर्स जो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 में थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, वो फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 पर ऑक्सीजन है एक्सेप्टेड दोज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का फेट बताए थे कल कि प्रोटॉन पंप आउट हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। उस इलेक्ट्रॉन को कैरी कौन कर रहा है, NADH प्लस H प्लस लेके आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस के पास, फिर उसने ले लिया, फिर अपने में से उसको बहाते हुए घुमाते हुए फाइनली ऑक्सीजन को दे दिया। तो फाइनली molecular oxygen is accepting a pair of electrons. Then proton will join this and it will form water molecule. Okay, चले आगे। Removed as part of hydrogen atoms to molecular O2। और एक चीज और जोड़ के लिखा हुआ है आपकी किताब में, with simultaneous synthesis of ATP। इलेक्ट्रॉन भी पास हो रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन जब एक कॉम्प्लेक्स से गुजर के दूसरे कॉम्प्लेक्स में, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर उसकी जर्नी जब पूरी हो जा रही है, कल बताया था आपको, मान लो कॉम्प्लेक्स 1, NADH प्लस H प्लस, तो प्रोटॉन्स जो हैं इस कंपार्टमेंट से निकल के दूसरे कंपार्टमेंट में चले जा रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहा है। while passing the electron, one complex is transferring a pair of four protons from one compartment to another compartment। ये आगे पढ़ेंगे और डिटेल में, ये तो आप समझ लो। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 है, इससे भी चला गया 4 इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 2 पर FADH2 दिया,
यहां से दो प्रोटॉन पास हुए। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स थ्री इज रिसीविंग द electrons from complex 2 and complex 1। इससे फ्लो होके यहाँ पर कहीं जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 1 से 3 पर आ जाता है NADH वाला इलेक्ट्रॉन, और FADH2 वाला इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 पर हुआ, उसका डोनेशन, और वो फिर वहां से भी 3 पर आया। फिर कॉम्प्लेक्स 4 में दोनों जगह से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 पर जाते हैं, और यहां पर ये कन्वर्जन होता है। हाफ O2 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, देन इट हैज बिकम हाफ O2 माइनस, देन प्रोटॉन। समझिए ये स्कीम है, मैकेनिज्म, आउटलाइन है। तो साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी इसीलिए बोल रहे हैं कि हर बार जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है इन सारे कॉम्प्लेक्सेस से, जब पास हो रहा है, तो प्रोटॉन्स वन कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक प्रोटॉन का पूल तैयार हो गया अदर साइड ऑफ द कंपार्टमेंट, एंड यहाँ पर एटीपी सिंथेस है इसी कॉम्प्लेक्स के साथ। This will allow the proton to leak through into the compartment again, inner compartment, and this will lead to the synthesis of ATP। इसलिए कह रहे हैं साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ O2। जब हाइड्रोजन के पास पहुंचा इलेक्ट्रॉन, तब तक प्रोटॉन का पूल हो गया, और उस पूल से एटीपी सिंथेसाइज हो गया। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria, while the second process is located on the inner mitochondrial membrane of the mitochondria. So this aerobic respiration pathway, पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन पाथवे को हम क्या बताया आपको, 4 स्टेप्स है। उसको मिटा दें। ग्लाइकोलाइसिस, the second Krebs cycle, third electron transport chain, and fourth oxidative phosphorylation। मीन्स ये हो गया सिंथेसिस ऑफ एटीपी प्रोटॉन पंप को यूज कर। दिस इज एनारोबिक, O2 की कोई आवश्यकता नहीं। Krebs cycle for glycolysis, it is complete oxidation of respiratory substrate has taken place। This is aerobic part of the cellular respiration। आपके इस बुक में इन दोनों को एक ही तराजू में तोला गया है, तीसरा और चौथा एक ही साथ बताया जा रहा है। इसको सेकेंड फेज बोल रहा है आपकी बुक में, सेकेंड फेज ऑफ एरोबिक respiration। So this is the first phase of
एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल। ओके, सेकेंड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं। समझ में आया ये डायग्राम, ये रिलेशन? अब इसको, the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. तो this Krebs cycle का लोकेशन है, ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन है साइटोप्लाज्म। Krebs cycle location is mitochondrial matrix। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कहाँ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स? दिस इज मैट्रिक्स जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। यहां पर क्रेब्स साइकिल हो रहा है, बाहर में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। और ये जो सेकेंड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, दिस इज टेकिंग प्लेस ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, तो कहने का मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन का लोकेशन है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये लिपिड बाइलेयर है, इसमें कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 सब इम्बेडेड है, पूरा भरा हुआ है। साथ में एटीपी सिंथेज भी, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। अंडरस्टूड? पायरूवेट which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol, clear है? After it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvate लिखना चाहिए, pyruvate dehydrogenase. Okay, the reactions catalyzed by the pyruvate dehydrogenase मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज पे लिखना चाहिए था, लेकिन पायरुविक एसिड के फॉर्म में तो वो है नहीं पायरुवेट, वो पायरुवेट के फॉर्म में है। अंडर पायरुविक एसिड को पानी में अगर घोल दो तो पायरुवेट के फॉर्म में हो जाएगा। हमारे बॉडी में भी साइटोप्लाज्म में क्या है, मोस्टली वाटर है, उसमें डिजॉल्व है सब सब्सटेंस, उसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक विस्कस गाढ़ा लिक्विड है, तो पानी ही है। उसमें जब ये पायरुविक एसिड तो पायरुवेट के फॉर्म में है। आप यहाँ जब बनाओगे नोट तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। गुड। Pyruvate dehydrogenase requires the participation of several coenzymes, including NAD+ and coenzyme A. एंजाइम पढ़ाए थे तुम, एंजाइम पढ़ाए थे तो क्या बताए थे? एंजाइम को कभी कभी कुछ कुछ एंजाइम ऐसा है जो बड़े बड़े काम करते हैं, क्वाटरनरी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन्हें को फैक्टर की जरूरत पड़ती है साथ में टू वर्क। एंजाइम को फैक्टर कॉम्प्लेक्स जो है वह एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रहा है। ठीक, ये को फैक्टर कई तरह के हो सकते हैं, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में हो तो ये को फैक्टर क्या कहा जाता है, और मेटल आयंस के रूप में हो तो क्या कहा जाता है? को फैक्टर
एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, या कोई मेटल आयन हो सकता है कि नहीं, या कोई प्रोटीन हो सकती है। बुक पलटो, जाओ पीछे। ये सब भूलते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? 12वां चैप्टर में जाइए। हाँ है, पेज नंबर बताओ तो। बायोमोलिक्यूल्स था ना, चैप्टर 9 थी। सी लास्ट में जाओ, कोफैक्टर्स 9.12.6। This enzyme is the protein part of this enzyme, active enzyme, and cofactor is non-protein part. जब तक कोफैक्टर बाइंड नहीं होगा एंजाइम से, एंजाइम विल नॉट बिकम catalytically active. So this protein portion of the enzyme is called as apo enzyme, the non-functional enzyme which needs the cofactor for the for it to become active. This cannot work alone, this protein part. So this is called as apo enzyme. And this cofactor 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में, को एंजाइम के रूप में, और मेटल आयंस के रूप में। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक ग्रुप। ओके, एंड दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। यही अंतर है इन तीनों में। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिक्वायर्ड, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एपो एंजाइम कोवेलेंटली बाउंड है नॉन प्रोटीनियस पार्ट, किसी मॉलिक्यूल से। ओके, जैसे रूबिस्को में जो बीच में रिंग है, पोरफायरिन रिंग, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीमोग्लोबिन में जो हीम रिंग है, इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इट इज नॉन प्रोटीनेसियस बट ऑर्गेनिक, एंड इट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम। कोवेलेंटली है तो टाइटली बाउंड है, so it is part of the whole enzyme complex. So non-proteinaceous part is called as cofactor, और proteinaceous part is apoenzyme. Prosthetic group वो है। और जब हम कहते हैं coenzyme, this is a separate molecule, organic molecule, which comes and interact with apoenzyme only during the time of enzymatic activity. After the reaction, it becomes free, and it can attach to another apoenzyme to make it catalytically active. प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंट पार्ट है एंजाइम का। वो एंजाइम जिस समय एंजाइम वर्क कर रहा है उस समय आके उसमें सटा, काम खत्म हुआ, चला गया। और मेटल आयंस, दीज आर, मेटल आयंस तो पूरा सेपरेट हो गया, और इनऑर्गेनिक है, सिंगल मॉलिक्यूल है। यह एंजाइम के कैटालिटिक साइट जो होता है, एक्टिव साइट, वहां पर ये रिक्वायर्ड, वहां पर इसकी जरूरत, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को बनाने के लिए, ताकि वो फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो रिएक्शन हो सके। उसके एक्टिव साइट में ये रिक्वायर्ड, किसी किसी एंजाइम में, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, ये मेटल आयन जैसे मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, दीज आयंस आर रिक्वायर्ड। जैसे जितना भी पॉलीमरेजेज हैं, डीएनए, आरएनए, उन सबको मैग्नीशियम आयंस है।
बहुत सारे एंजाइम्स है, जिंक आयंस चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ये सब मिनरल आपके लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जिंक जाके क्या करेगा बॉडी में? वो को फैक्टर बनेगा उन एंजाइम्स का जो, जिसको जिंक रिक्वायर्ड। मैग्नीशियम क्या करेगा? वो को फैक्टर बनेगा पॉलीमरेजेज का जो रिक्वायर्ड। ओके, अगर मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाए तो वो एंजाइम्स कैसे काम करेंगे? तो पर्सन विल सफर विद द डिजीजेस, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको। तो ये हो गया आपके, समझा दिया आपको एंजाइम को फैक्टर रिलेशन। नाउ सी, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे, कैसे हो रहा है। पायरुवेट, कहने का मतलब पायरुवेट में बहुत सारी तब्दीली आई, काफी बदल गया पायरुवेट इस रिएक्शन के फलस्वरूप। तो इसके लिए तगड़ा एंजाइम है जो बड़ा काम कर सके। क्या हो रहा है पायरुवेट के साथ? एक CO2 भी निकल रहा है, एक NADH भी प्रोड्यूस हो रहा है इस स्टेप में। डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन बोथ इज occurring in this step. So this is first step of the Krebs cycle, where the decarboxylation of pyruvate is taking place. Means one CO2 will be liberated from this molecule, and dehydrogenation means hydrogen also will be extracted out from this. इस पायरुवेट में एक कार्बन भी घट गया, एक ऑक्सीजन भी घट गया। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन भी घट गए CO2, और दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन भी इसमें से निकल गए। बताए थे आपको रिडॉक्स पोटेंशियल, दो हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन, टू प्रोटॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। ये रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इनका आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इनका प्रदान हो रहा है। ये एक ही साथ जाएगा ना, इसीलिए कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। यही ऑक्सीडेशन। अरे NAD+ को हम दो प्रोटॉन दिए और दो इलेक्ट्रॉन दिए, तब ना NADH+H+ बना। और NAD+ से NADH+H+ है क्या? ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में क्या हुआ? हाइड्रोजन का रिमूवल, और इसका क्या हुआ? ये रिडक्शन हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म है। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, सॉरी हम उल्टे लिखे, इसका हुआ रिडक्शन, है ना। NAD+ का रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन इज बेसिकली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसका उल्टा हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन। NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडॉक्स पोटेंशियल है यही। ये निकला कहां से? निकला ये पायरुवेट से निकला। और पायरुवेट से कार्बन भी निकला, ऑक्सीजन भी निकला। तो ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसी का चर्चा है आपके बुक में। तो पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द साइटोसोल आफ्टर इट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, it undergoes the pyruvate in the mitochondrial
matrix, not the pyruvate which is present in the cytoplasm. वो पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ चुका है उसका. ओके, दिस अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. दो काम हो रहे हैं इसके साथ. डीकार्बोक्सिलेशन बाय कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस एंड नहीं लिखा है हाइड्रोजिनेशन. किसका हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन? पायरुवेट का. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी पायरुवेट का हो रहा है. And this is a complex set of reactions. The reaction is catalyzed by pyruvate dehydrogenase enzyme. कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, बीच बीच में हम एग्जांपल देते रहते हैं इसका. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज enzyme. The reaction is, पूरा लिख लो फॉर्म, पायरुवेट dehydrogenase. And this reaction is catalyzed by this enzyme, but this enzyme requires the participation of some coenzymes. Without coenzyme, this enzyme complex cannot work. तो कह रहा है several coenzymes. NAD plus is also coenzyme. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट भी है और ये कोएंजाइम भी. एंड दिस कोएंजाइम ए, इस कोएंजाइम का नाम है दूसरे वाले का कोएंजाइम ए. अच्छा से लिख लो, कोएंजाइम ए. Each coenzymes are required for this reaction to happen. So now you can write this reaction as pyruvate plus, at the end of the reaction also you will get the coenzyme. It is not going to be utilized. कोएंजाइम क्या है? कोफैक्टर ही है जो इस एंजाइम को चाहिए फंक्शन करने के लिए. ओके, कोफैक्टर तीन तरह के होते हैं. ये कोएंजाइम वाला है जो कि सिर्फ एक्टिविटी के दौरान एंजाइम से बाइंड करता है और एक्टिविटी खत्म होने के बाद एंजाइम से अलग हो जाता है. परमानेंट पार्ट नहीं है एंजाइम का, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप था. ओके, तो अब पायरुवेट प्लस NAD प्लस प्लस कोएंजाइम ए सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है इसलिए लिखे प्लस प्लस प्लस, बिना इसके होगा नहीं. ये एक्टिव साइट पर जाएंगे, एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेंगे. देन this enzyme pyruvate dehydrogenase, for its activity, magnesium ions as cofactor are required. कितना नखरा वाला एंजाइम, दो को इसको कितना कोफैक्टर चाहिए देख रहे हो. एक ये भी चाहिए कोएंजाइम के रूप में, ये भी चाहिए कोएंजाइम के रूप में कोफैक्टर, और मैग्नीशियम आयंस भी चाहिए, मेटल आयंस जो ये है ये भी चाहिए कोफैक्टर के रूप. एंड देन the product you get is
एसिटाइल को एंजाइम ए CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस. Okay, so this is that crucial step where after the entry into the mitochondrial matrix, pyruvate goes through. ग्लाइकोलाइसिस खत्म हुआ, पायरुवेट आया, माइटोकॉन्ड्रिया में घुसा, मैट्रिक्स में. यस, पायरुवेट घुसा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, दोनों दरवाजे को क्रॉस करके सीधा भीतर के रूम में चला जाता है पायरुवेट. यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पहला मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बीच में आ गया, मैट्रिक्स उसको करते. और यहाँ ये प्रक्रिया जब मैट्रिक्स में आ गया पायरुवेट, तो पहला काम पायरुवेट के साथ यही हुआ. आपको बताए थे पहले, ग्लूकोज जब सेल में घुसा तो पहला काम क्या हुआ उसके साथ? फॉस्फोराइलेशन, अरेस्टिंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन. तब ग्लाइकोलाइसिस उसका शुरू हो गया. और यहाँ पर पायरुवेट का हो रहा है, वो जैसे ही गया उसको ये एंजाइम पकड़ के पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, साथ में यहीं पर सारे फैक्टर्स भी हैं, NAD प्लस है मैट्रिक्स में, कोएंजाइम ए भी है यहाँ पर मौजूद पहले से, ये रखे हुए माइटोकॉन्ड्रिया. पायरुवेट अंदर घुसा, एंजाइम जो है उसको सबस्ट्रेट मिल गया, और को फैक्टर पहले से है ही, एंजाइम को फैक्टर के साथ मिलके पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन कर देगा. सो इस प्रक्रिया में हमें क्या मिल रहा है? गेन हो रहा है, कुछ चीज, बढ़िया चीज मिल रहा है, जिसको बाद में एनर्जी हार्वेस्ट किया जा सकता है, जिनसे फिर फर्दर NADH प्लस H प्लस. एंड व्हाट वी आर गेटिंग एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, CO2. CO2 का साथ हमारा बॉडी क्या करेगा? अनवांटेड, इसको अब घर में भाषा है तो उसको घर के बाहर देना है, तो झाड़ू से लेकर के उसको बहोर दी, है ना. तो ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, भाषा है, तो इसको हमको फेफड़ा तक पहुंचा देना है. वहां से गैसेस एक्सचेंज होकर बाहर चला जाएगा, फेफड़ा तक पहुंचाने में ये CO2 वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगा. वो तरीका हो गया, वो झाड़ू हो गया, समझ. कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है झाड़ू हो गया, उसको कार्बोनिक एसिड में H2O के साथ बाइंड करा के, पढ़ाए थे ना, बाइंड करा के एसिड के फॉर्म में उसको बाहर कर देगा. तो ये वेस्ट प्रोडक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो बचा, इसका साथ क्या होगा? ये फिर फर्दर आगे, इसमें अभी भी एनर्जी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड. आप अगर इस कार्बन स्केलेटन के साथ देखो क्या हो चुका है, अभी तक बहुत टूट चुका है. 4 5 6 ये चला था ग्लाइकोलाइसिस पे स्टार्ट में, आधा ग्लाइकोलाइसिस हुआ था जब तक, तो 3 3 में टूट चुका था, हुआ था ना. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. हम सिर्फ कार्बन स्केलेटन बना रहे हैं, फॉस्फेट और अदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं. फिर यही 2 गो पायरुवेट था, वो भी 3 कार्बन कंपाउंड, लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस के end ये अब घुसा यहाँ, क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट रिएक्शन, तो इससे एक CO2 निकल गया. अब ये एसिटाइल ग्रुप भी बचा है, जो कि कोएंजाइम के साथ बाउंड है. कोएंजाइम निकल के अलग चला जाएगा बाद में, ये बचा है.
इतना तक ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, इतना तक ऑक्सीडेशन में हमको मिला ना, एनएडीएच मिला बहुत सारा। यहाँ भी मिल रहा है एनएडीएच इस स्टेप में भी। ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 एनएडीएच मिला था। करेक्ट। अब चूंकि पायरुवेट दो था पायरुवेट, 2 पायरुवेट चलेगा, 2 को मिलेगा एनएडीएच। अब तक कितना एनएडीएच जमा हो चुका है? 2 क्रेब ग्लाइकोलाइसिस से, और ये फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल से भी 2 मिल गया। 4 एनएडीएच हो चुके हैं, ग्लूकोज से मिल चुका है, हार्वेस्ट हो चुके हैं। 4 एनएडीएच प्लस एच प्लस। और डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस तो डायरेक्ट हुआ था, एनएडीएच के थ्रू नहीं था। एनएडीएच के थ्रू बाद में होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो दोनों मिला के होगा। तो जो डायरेक्ट हुआ था, एक 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बना, और दूसरा फॉस्फोइनलो पायरुवेट से पायरुवेट जब बना था। ठीक है, और 2 इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो टोटल प्लस माइनस करके 2 एटीपी डायरेक्ट मिला था हमको। बस डायरेक्ट में अभी तक 2 ही एटीपी मिला है, लेकिन 4 एनएडीएच मिल चुके हैं, एनएडीएच प्लस एच प्लस अभी तक। समझ में आया? अब हम सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाते हैं, थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में, ताकि आपको एग्जाम वगैरह में आएगा तो आप ऐसे करोगे और इसमें ज्यादा अच्छे से पिक्चराइज हो जाएगा। सी पायरुवेट has entered into the mitochondrial matrix. Okay? पूरा क्रेब्स साइकिल हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, बुक में दिया है जो। Acetyl coenzyme joins the oxaloacetate to form citrate.
then isocitrate. After that, alpha ketoglutarate is formed. Then succinyl coenzyme A, and then succinyl coenzyme A is converted into succinate. Succinate is converted into fumarate. Fumarate is converted into malate. Malate is converted into oxaloacetate. ये सब इसके मेटाबोलाइट्स है, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स. इसको हम कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल. एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. साइकिल तो इसी से हो गया. कभी कभी देखोगे टीसीए साइकिल भी मिलेगा या क्रेब साइकिल. ये सारे नाम इसी के हैं. Now see, pyruvate is converted into acetyl coenzyme A with the help of this enzyme pyruvate dehydrogenase. Okay. So in this, the input is coenzyme A. In this coenzyme A plus NAD plus. This is the input. And the output is CO2 plus NADH plus H plus. Okay. The enzyme का नेम लास्ट में लिख देंगे. ठीक है, चलो कितना हो गया. अब देखिए, this acetyl coenzyme A is combining with oxaloacetate. Okay, and एक वाटर भी ऐड होता है. ऑक्जेलोएसीटेट में वाटर ऐड हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड हुआ और फिर यहां से कोएंजाइम ए लिबरेट हो गया. रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट. मींस ऑक्जेलोएसीटेट के पास गया एक वाटर और एसिटाइल ग्रुप, जिसकी वजह से वो साइट्रेट बन गया. कोएंजाइम में इस एसिटाइल ग्रुप को लेके चला और ऑक्जेलोएसीटेट को ट्रांसफर कर दिया. समझ में आ रहा है? हाँ, जहां नहीं आएगा वहां रोक के पूछना. साइट्रेट. साइट्रेट के बाद बनता है, बीच में और भी इंटरमीडिएट है, सिस फॉर्म, एकोनोएट फॉर्म ऑफ द साइट्रेट, वो सब हम ओमिट कर दे रहे हैं. डायरेक्ट साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट. और इस प्रक्रिया में वाटर का प्लस माइनस होके बैलेंस हो गया. लेकिन आपको यहां पर यस ठीक है, चलो यहीं से इसमें इसको सिंपल बना के कर रहे हैं, ज्यादा इसमें झंझट नहीं उत्पन्न करेंगे. साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट समझ लो. एक्चुअली दिस इज 2-3 steps, a 2-step process. Citrate to isocytrate. In the first step, water is
लिबरेटेड एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वाटर इज कंज्यूम। तो उस सबको प्लस माइनस करके बराबर पे, एक वाटर निकला एक वाटर गया तो बराबर हो गया। साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन, और ये बहुत ही मेजर स्टेप। एंड इन दिस मेजर स्टेप 1 NAD plus is reduced here, NADH plus H plus, and in this process, और यहां पर एक CO2 भी निकल जाता है। दो कार्बन घुसा, एक कार्बन यहां निकल गया। अगर यहां से पायरुवेट से जोड़ो तो 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन में से एक कार्बन यहां निकला, एक कार्बन यहां निकला, अब एक बचा CO2। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके। लाइन आएगा तो मुझे ध्यान दिला देना, ये ऑन करने का। बुक सामने है, एक फिगर बना हुआ होगा, उसमें देखिए। So in this process, for the conversion of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A, what is required? एक तो कोएंजाइम ए लगेगा ही, यहां पर कोएंजाइम ए ऐड हुआ, और NAD प्लस, again in this process NADH will be formed. So क्या मिलेगा हमें? कोएंजाइम ए चला गया प्रोडक्ट के पास, NADH plus H plus, and one more CO2 is liberated here. Now see, कार्बन स्केलेटन का सारा कार्बन निकल चुका है। The resulting product, succinyl coenzyme A, is converted to succinate. Okay, and in this process, this is direct phosphorylation. In this process, GDP is formed into GTP. ये हो गया इक्विवेलेंट ATP का, तो उस एंजाइम के साथ ये GTP ही बाइंड कर सकता है, ADP नहीं। तो GT वो एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो GTP ले लिया, GTP बना लिया। अब इस GTP से फिर ATP बन सकता है। हाँ, अरे तो GTP तुमको जैसे ATP हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, ATP है, CTP है, GTP है, TTP है, UTP है, नहीं समझी? अरे भाई, नाइट्रोजिनस बेसेज है, उसके ट्राइफॉस्फेट्स हैं, क्या है? ATP हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बाकी जो 5-4 और नाइट्रोजिनस बेसेज है, उनके भी तो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं। जब डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस होता है तो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आते हैं, और फिर 2 फॉस्फेट निकल के मोनोफॉस्फेट के रूप में वो न्यूक्लियोटाइड के रूप में ऐड हो जाते हैं। तो सबस्ट्रेट जो है पॉलीमराइजेशन का वो ट्राइफॉस्फेट, समझे? जैसे एटीपी का ट्राइफॉस्फेट है, वैसे ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट भी है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट भी है, थायमिन ट्राइफॉस्फेट्स भी है, ओके। लेकिन एटीपी यूज होता है फॉर द एनर्जी करेंसी, लेकिन पॉलीमराइजेशन के लिए ये सब ट्राइफॉस्फेट रिक्वायर्ड होंगे डीएनए के। तो ये सब में एनर्जी रिच बॉन्ड है। तो जीटीपी जो फॉर्म हुआ वो एटीपी में बदल सकता है आगे जाके, ये यूटिलाइज होगा। तो ये भी गेन हुआ,
इसको मान लो एक एटीपी के बराबर, डायरेक्ट सिंथेसिस है हो रहा है यहाँ एटीपी का। क्रेब्स साइकिल में भी देखे थे डायरेक्ट जो सिंथेसिस हुआ था विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनएडीएच, यहाँ भी डायरेक्ट सिंथेसिस हो रहा है एटीपी का। ओके जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में जीटीपी में इनकॉर्पोरेट हो गया। और साथ ही साथ ये जो कोएंजाइम ए सक्सिनाइल के साथ था वह कोएंजाइम ए भी लिबरेट हो गया। ओके, नाउ यू हैव सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट formation. Okay, and in this reaction FAD has converted into FADH2. You have obtained FAD, oh, FAD plus फ्यूमरेट से मैलेट बना और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ तब, और मैलेट से फिर ऑक्जेलो एसीटेट बना, इसमें फिर NaDH बना। कितना सारा NaDH बन रहा है देख रही हो? हाँ, 3 बना, और एक FADH2 भी तो बना, एक GTP भी प्राप्त हुआ। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस से कितना ज्यादा इसको मिला है ना, उसमें तो 2 ATP 2 NADH था, इसमें एक ATP और 3 NADH और एक FADH2। क्या बोले बेटा? ये नहीं, तो ये तो दिख ही नहीं रहा है किस स्टेट पर। हम्म हम्म 4 NADH निकला, 2 निकला ना? हाँ 2 था। हाँ हाँ, सही बोलो, डबल करते जाओगे सबको, ठीक है ना? 2 पायरुवेट था तो सब डबल होते जाएगा। तो वो सही पकड़ी हो, वो ग्लूकोज तो एक ही था इसलिए वो था, लेकिन ये तो डबल हो जाएगा। अभी करेंगे, सबको डबल करेंगे। कितना समझी? और फिर यहाँ ऑक्जेलो एसीटेट यहाँ चला गया। हम्म पायरुवेट और ऑक्जेलो एसीटेट इंटर कन्वर्टिबल है। अगर पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन कर दें, एक CO2 ऐड कर दें इसमें, तो ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है। अगर ऑक्जेलो एसीटेट का, अब ये चूंकि कंज्यूम तो हो नहीं रहा है, साइक्लिक वे में चल रहा है, एक तरफ से एसिटाइल घुस रहा है, जितना ऑक्जेलो एसीटेट शुरू में था वो लास्ट में भी है। मान लो ऑक्जेलो एसीटेट किसी दूसरे पाथवे में यूटिलाइज हो गया, तो ऑक्जेलो एसीटेट पायरुवेट से बन सकता है, ओके, इसकी कमी को पूरा करने। तो इसमें होता है पायरुवेट और आपका कार्बोनेट, नहीं बाइकार्बोनेट प्लस ADP, ATP ना, ATP प्लस 1 ATP
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में लिबरेज हुआ, एक एटीपी खर्च करके पायरुवेट को ऑक्जेलोएसीटेट में बदला जा सकता है। खैर, इसी को कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। नाउ एंजाइम का नाम is worth mentioning here. The enzyme's name is pyruvate dehydrogenase, the first enzyme. Pyruvate dehydro, बुक में दिया है एंजाइम का नाम? नहीं दिया। एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्जेलोएसीटेट से साइट्रेट बना, एसिटाइल को एंजाइम में ज्वाइन करके। दिस एंजाइम्स नेम इज साइट्रेट सिंथेज। साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट जो बना, एंजाइम का नाम है एकोटिनेज। आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, द एंजाइम्स नेम इज, देख रहे हो यहाँ तो जरूर क्या होगा, सफिक्स में डिहाइड्रोजिनेज होगा ही, एनएडीएच का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हो गया इसका नाम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज जुड़ेगा। क्या नाम हो गया? अल्फा कीटो डी ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटो ग्लूटारेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। Now succinyl coenzyme A to succinate. This enzyme's name is succinyl coenzyme synthetase. Okay, succinyl coenzyme, succinyl coenzyme A synthetase. ओके, अब सक्सिनेट बना इस एंजाइम के एक्शन से। सक्सिनेट से जो फ्यूमरेट बना, इस स्टेप पे एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यस, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। Now, from fumarate to malate, the enzyme name is fumarase. Malate to oxaloacetate. Again, here the NADH production is taking place. So, the name will be malate dehydrogenase. Okay? अब इसका चीरफाड़ करेंगे, लेकिन लाइन नहीं। ओके, बोलते जाएंगे, समझ तो रही हो, बाद में वीडियो देख लेना यहाँ से। ए मैंने वीडियो क्या देखोगे, यहाँ तो शेयरिंग ही बंद है, तो लाइन कट जाता तो शेयरिंग भी बंद है। Let me start it again. Starts here. अब आ गया। ओके, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फिगर अभी नहीं अपेयर हो रहा होगा, अब आपको दिख गया। ओके, ये सब ब्राउन से जो लिखे हुए हैं वो एंजाइम के नाम है।
Red color indicates the pathway direction and input and output things. Blue color indicate metabolites. तो अभी तक आपने देखा कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में टिल नाउ फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस we have obtained 2 ATP and 2 NADH plus H plus. The Krebs cycle output is 1 GTP and how many NADH? तो चूंकि 2 molecules of pyruvate has entered the Krebs cycle, so 2 GTP and 1 molecule of acetyl pyruvate generates how many NADH? 1, 2, 3 and 4 NADH. 3 in the cycle and 1 before entering the cycle. Okay, 1, 2, 3 and 4. So 4 NADH plus H plus production is taking place from 1 pyruvate. 4 दूनी 8 हो गया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 8 NADH plus H plus and 2 FADH2. तो आप देख आ जाओ भाई, तो आप देख रहे हैं आउटपुट कितना ज्यादा हो रहा है क्रेब्स साइकिल में. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो गया इसमें, 2 GTP, 8 NADH plus H plus और 2 FADH2. टोटल हो गया अभी तक आपको कितना प्राप्त हो गया पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है, सो टोटल नेट गेन आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. टोटल जोड़ दीजिए ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के आउटपुट, 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में, 2 GTP क्रेब्स साइकिल में, इक्विवेलेंट टू 4 ATP प्लस 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस और 8 NADH प्लस H प्लस क्रेब्स साइकिल. तो 10 NADH प्लस H प्लस and 2 FADH2. FADH2 तो उधर निकला नहीं था, आया. ओके, दिख रहा है, यही बता रहे थे आपको. ब्राउन कलर से एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, तो पॉज करके ध्यान से देखना यूट्यूब में अपलोड. और ये ग्रीन कलर से आउटपुट दिखा रहे हैं, यहाँ एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है
जब तक आफ्टर इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन, व्हाट यू गेट, ग्लाइकोलाइसिस 2 एटीपी 2 एनएडीएच, क्रेब्स साइकिल 2 जीटीपी 1 एनएडीएच, total net gain after complete oxidation glucose molecule 4 ATP 2 GTP 2 ATP plus 10 NADH, ये 8 और ये 2 प्लस 2 FADH। तो यह जो है वह आपको प्राप्त हुआ एक ग्लूकोज को पूरा कंबस्शन करने से। ये क्या हुआ, स्टेप वाइज कंबस्शन हुआ, कितना प्रोसेस कन्वर्ट हुआ, सब कार्बन अलग अलग हो गया। ओके, एक ही बार ग्लूकोज को कागज को जला दें तो सारा एनर्जी जो है उष्मा के रूप में बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। स्टेप वाइज प्रोसेस में ये हार्वेस्ट हुआ एनर्जी, और एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, इसमें स्टोर्ड है, इसमें स्टोर्ड है। ये तो डायरेक्ट एटीपी है ही, यहाँ से एनर्जी को निकाल के हार्वेस्ट करके अब आगे का प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इससे निकालेगा एनर्जी। ये तो मिल गया डायरेक्ट, इसको हार्वेस्ट करेगा, इससे हार्वेस्ट होगी NADH plus H plus and FADH2 in the processes which comes ahead. And here you are observing the complete oxidation of pyruvate. The first carbon is liberated in this system by this enzyme, pyruvate dehydrogenase. The second carbon is liberated here by the enzyme isocitrate dehydrogenase. The third carbon is liberated here, alpha keto butyrate dehydrogenase. तो CO2 कहाँ रिलीज हो रहा है, ये ध्यान में रखिए। सिंपल सा है, जहां डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है वहां CO2 रिलीज हो रहा है, एक्सेप्ट दिस वन। ओके, माइलेज डिहाइड्रोजिनेज में जहां हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें CO2 ना रिलीज हो रहा है, और बाकी यहाँ रिलीज हो रहा है, यहाँ भी रिलीज नहीं हो रहा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज में। लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंड आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तीन जगह पर CO2 निकल गया, पायरुवेट पूरा खत्म हो गया, खप गया। अब देखिए क्या है, ये ऑक्जेलो एसीटेट की 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड और एसिटाइल ग्रुप जो यहाँ इनकॉर्पोरेट हो रहा है, दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड। वो एंजाइम ए को छोड़ दीजिए, इसमें भी कार्बन है, एसिटाइल की बात कर रहे हैं, 2 कार्बन एंड 4 कार्बन, ये कंबाइन हुआ साइट्रेट विद द 6 कार्बन। Isocitrate is also 6 carbon. Alpha beta glutarate is 5 carbon. CO2 निकल गया यहाँ, ये 5 कार्बन का है कंपाउंड, एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम इज 4 कार्बन, CO2 यहाँ निकल गया। अब फिर ये सारा 4 कार्बन है, सक्सिनेट भी 4 कार्बन, ट्यूमरेट भी 4 कार्बन, मैलेट भी 4 कार्बन, और येलो एसीटेट भी 4 कार्बन। प्रकार से कार्बन का बैलेंस भी चल रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। जो इसमें ऊपर से आटा चक्की होता है ना, ऊपर से गेहूं डालते गए, नीचे से आटा निकलते गया, गेहूं हो गया पायरुवेट, ये चक्की मिल है, इसमें ऑक्जेलो एसीटेट उसका जाता हो गया, उसके साथ कंबाइन करके सारे कार्बन को तोड़ तोड़ के अलग कर दिया, और फिर जाता तो बरकरार है, बार बार यूज हो रहा है। ये साइक्लिक फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे है, इस प्रकार से दिमाग में हटा लो इसको। ग्लाइकोलाइसिस लीनियर पाथवे था, ये सर्कुलर है। ओके, ऐसा ही एक और पाथवे होता है जो सर्कुलर है, यूरिया साइकिल इन अस, वो भी सर्कुलर है। हायर क्लासेस में पढ़ोगे यूरिया कैसे बनता है बॉडी। चलो आगे चले।
tricarboxylic acid cycle. The TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with oxalo. सब जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, समझते जाओगे, देखते जाओ। हम बुक पढ़ रहे हैं, तुम यहाँ ध्यान रखो डायग्राम पर। ओके, oxalo acetate कहाँ कहाँ से होते थे? Starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid. ओके, oxaloacetic acid से acetyl group का कंडेंसेशन हुआ एंड वाटर का भी कंडेंसेशन हुआ टू yield citric acid, citrate. The reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase, and a molecule of coenzyme is released. जो combine हुआ था यहाँ. Citrate is then isomerized to isocitrate. It is followed by two successive steps of decarboxylation. Isocitrate का दो स्टेप में decarboxylation हो रहा है isocitrate बनने के बाद. एक स्टेप आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने के दौरान फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन CO2, सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनने में सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन, एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहां बन गया, एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहां बन गया. In the remaining steps of the citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid. यहाँ से यहाँ तक कोई एक ही लाइन में लिख रहा है oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. During the conversion of succinyl coenzyme A to OOA, oxaloacetic acid, this succinyl coenzyme A is converted into succinic acid first, which is succinate. Okay. And a molecule of GTP is formed during this reaction. Okay. So this is a kind of substrate level phosphorylation, which is happening here. इसको हम direct phosphorylation कह रहे थे. Appropriate होगा substrate level phosphorylation, जो कि आप glycolysis में भी देखते हैं. Phosphorylation. In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP and ADP. यानी ये GTP हो गया, यहाँ आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं. In a coupled reaction, ATP, ADP. या कपल रिएक्शन कहने का मतलब ये होता है, ये GTP आ गया, GTP has been broken down into GDP plus inorganic phosphate. ये inorganic phosphate ADP plus inorganic phosphate is converted into ATP. ये coupled reaction होगा. GTP टूटा GDP inorganic phosphate में, और ADP तो है ही वहां सब जगह, यही inorganic phosphate ऐड होकर फिर GTP बन गया, तो ATP फॉर्म हुआ, इसलिए हम यहाँ ATP लिख देते हैं. ओके, 2GTP यहाँ हो रही, तो ये आपको यहाँ लिखा भी है. In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also, there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus. 3 जगह इस साइकिल के दौरान ये NADH फॉर्म हो रहा है, और एक साइकिल में एंटर से पहले, इसलिए 4 हो गया. And 1 point, at this point where succinate is converted into fumarate, here FADH2, FAD plus is reduced to FADH2. The continued oxidation of
acetyl coenzyme A via this TCA cycle. This requires the continued replenishment of oxaloacetic acid. इस साइकिल को बरकरार रखने के लिए, हमेशा चलते रहने के लिए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के लेवल को बना के रखना होगा। ओके, क्योंकि बीच वाले इंटरमीडिएट तो सब कन्वर्ट होके बन रहे हैं, दूसरे में तब्दील हो रहे हैं, और लास्ट में जो छूट गया, यहीं पे शुरू हुआ था ऑक्जेलोएसिटेट, और एसिटाइल कोएंजाइम के ऊपर से आ रहा है बन बन के, ये इससे कंबाइन हो रहा है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्जेलोएसिटेट होना चाहिए। जितना ऑक्जेलोएसिटेट होगा उतना साइकिल चलेगा, नंबर ऑफ साइकिल। अगर 5 ऑक्जेलोएसिटेट है तो 5 साइकिल चल सकते हैं, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। सपोज इधर बहुत सारा खाना खाया, खाना में तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ओके, पायरुवेट बहुत है, प्लेंटी है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गए। एसिटाइल कोएंजाइम ए भी प्लेंटी है, मान लो कि 100 है मॉलिक्यूल्स है एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर एग्जांपल, और ऑक्जेलोएसिटेट का सिर्फ 20 मॉलिक्यूल है मान लो, तो 20 ही साइकिल चलेंगे ना। 80 वाला जो बच जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, वो वेट करेगा टू एंटर द साइकिल। 20 एंटर किया, फिर 20 किया, फिर 20 किया, तो इस तरह ऑक्जेलोएसिटेट की मात्रा जो है वो डिसाइड कर रही है कितने साइकिल चलेंगे। तो ऑक्जेलोएसिटेट की मात्रा बढ़ा घटा के सेल क्रेब्स साइकिल को कंट्रोल कर लेता है। ये समझ लो स्विच हो गया, नॉब है ये क्रेब्स साइकिल के रेगुलेशन का, और वो नॉब को यानी ऑक्जेलोएसिटेट कितना बनेगा इसको डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ पर, द एंजाइम, द एंजाइम्स नेम इज pyruvate carboxylase which is catalyzing this reaction। यहाँ पर एंजाइम है, नहीं लिखे थे हम, बहुत बेहतरीन एंजाइम है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। दिस एंजाइम इज रेगुलेटिंग क्रेब्स साइकिल, और ये दोनों दिशा में हो सकता है रिएक्शन। ऑक्जेलोएसिटेट से पायरुवेट भी बन सकता है, पायरुवेट से ऑक्जेलोएसिटेट भी बन सकता है। अगर उसको क्रेब्स साइकिल को कम करना होगा तो ऑक्जेलोएसिटेट की संख्या घटा देगा, उसको बदल देगा पायरुवेट। क्रेब्स साइकिल जितने चल रहे हैं, हजारों क्रेब्स साइकिल चल सकते हैं, कम हो गए। ठीक, आप ये मत समझना कि एक ही साइकिल चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस एक ही पाथवे चल रहा है पूरा साइटोप्लाज्म में, कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सबका पाथवे चल रहा है, समझे। कई सारे पायरुवेट जन आए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, सब पायरुवेट का साइट्रिक एसिड साइकिल हो सकता है, लेकिन कितना साइट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, पायरुवेट एंटर करेगा, हाँ, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन के ही एंटर करेगा, तो कितना एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलिक साइकिल में जाएगा वो डिसाइड होगा ऑक्जेलोएसिटेट की संख्या पर, और इसकी संख्या को तय कर रहा है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्योंकि ये इसकी मात्रा को ऊपर नीचे कर सकता है, इसमें इंटर कन्वर्जन है पायरुवेट और ऑक्जेलोएसिटेट। समझे बात को। कंटिन्यूड इसीलिए लिखा है लास्ट लाइन में, आप देखिए, द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए via TCA cycle requires the continued replenishment of oxaloacetic acid, the first member of this cycle. In addition, it also requires regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively. The summary equation for this phase of respiration may be written as follows. Okay. चलो, इस लाइन को भी आप नहीं समझोगे, इसमें 2-3 कपल रिएक्शन है, इसको ऑन कर दिया। आप ऑक्जेलोएसिटेट क्यों चाहिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम में कितना वो यूटिलाइज होगा, उसका कंटिन्यूड होते रहे ऑक्सीडेशन, उसके लिए ऑक्जेलोएसिटेट की संख्या चाहिए। पायरुविक एसिड इसको मिटा दे,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के, यहाँ देखो येलो बॉक्स में दिया है आपके बुक में। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, पायरुवेट, जबकि हम यहाँ लिख दिए गेन जो है नेट के, पायरुवेट प्लस एक पायरुवेट, 4 NAD लगता है उसको, एक पायरुवेट प्लस 1 FAD प्लस 2H2O। ये एडीपी कहाँ लगा, जीटीपी से, हाँ वहां कपल रिएक्शन, प्लस 1 ADP प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट gives rise to, this reaction is happening inside the mitochondrial matrix by the enzymes present in that matrix. So mitochondrial matrix enzymes. And then what you are getting is free CO2 is liberated, 4 NADH। अब समझ गए, वो सब बता दोगे, प्लस FADH2 प्लस ATP। Okay, so this is the net reaction of Krebs cycle. अब एक ग्लूकोज से दो TCA साइकिल चलेंगे, तो सबको डबल डबल कर दोगे, 2 पायरुवेट बना, 2 बना, इसको डबल कर दिए, 2 ATP हुआ, 8 NADH हो गया, 2 FADH2 हो गया, और दिस इज द टोटल थिंग। Okay, so we have now till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules of NADH plus H plus, 2 of FADH2, 2 of FADH2 have been synthesized. Okay. Besides just 2 molecules of ATP, just 2, सिर्फ 2 molecule of ATP in TCA cycle. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture, nor the promised large number of ATP has yet been synthesized. आप देख रहे हो अभी तक ना वो ऑक्सीजन पिक्चर में आया है और ना ही बहुत ज्यादा संख्या एटीपी की बनी है। लेकिन इसका इस मेटाबॉलिक पाथवे सब जो है सब इंटर रिलेटेड, क्योंकि आगे के स्टेप में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है और NAD+ का जनरेशन भी हो रहा है आगे के स्टेप, और जो NAD+ रिक्वायर्ड है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए, अगर NAD+ डिप्लीट हो जाएगा तो वो एंजाइम्स जहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होना है वह स्टेप रुक जाएगा। NAD+ नहीं मिलेगा तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होंगे, क्योंकि NAD+ उसके कोई एंजाइम है। ओके, समझ रहे बात को? तो NAD+ सप्लाई रुक जाएगा तो यह भी रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अभी तक हमको ये सब यूजफुल चीज प्राप्त हो चुका है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा। लेकिन आश्चर्य आपको लग रहा हो, कहीं ऑक्सीजन नहीं लग रहा, ना ग्लाइकोलाइसिस में ना क्रेब्स साइकिल में, और बहुत ज्यादा एटीपी भी नहीं बना है। लेकिन फिर भी क्रेब्स साइकिल को हम
ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे कहते हैं। व्हाई? क्यों कह रहे हैं एरोबिक पाथवे? ऑक्सीजन तो लगा नहीं, एरोबिक पाथवे से कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं एरोबिक पाथवे, कल आप पढ़े होंगे ग्लाइकोलाइसिस के एंड में जो पायरूवेट मिला था, उससे एनिमल्स ने क्या किया, लैक्टिक एसिड बना लिया ताकि एनएडी प्लस, आगे क्रेब्स साइकिल रुका हुआ है, एनारोबिक कंडीशन है। तो एनएडीएच क्रेब्स साइकिल से नहीं बन रहा है, जो भी एनएडीएच बन रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस से बन रहा है, एनएडी प्लस कंज्यूम करके। तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को एनएडी प्लस हमेशा चाहिए, तो ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ चलते रहेगा और आगे का पाथवे रुका रहेगा, एनएडी प्लस का जनरेशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद है, एनएडी प्लस जनरेशन नहीं हो रहा है। तो वो एनएडी प्लस ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को सप्लाई नहीं हो रहा है। यही पढ़े थे फर्मेंटेशन में, दिस स्टेप इज फॉर सप्लाइंग द एनएडी प्लस बैक टू द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में दो एनएडीएच बना था और यहाँ पर एक पायरूवेट से एक लैक्टिक एसिड बनने में एक एनएडीएच कंज्यूम हो जा रहा था। तो दो पायरूवेट से फिर दो एनएडीएच कंज्यूम होगा, तो यानी एनएडीएच जो बना ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में वो पूरा कंज्यूम हो गया इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में। तो दो एनएडी प्लस सप्लाई हो गया, यानी जितना 10 ग्लाइकोलाइटिक पाथवे चल रहा है तो 10 बरकरार रख सकता है अगर आगे फर्मेंटेशन प्रोसेस चलते रहे तो। दो कंज्यूम हुआ, दो जनरेट हो गया, दो कंज्यूम हो गया, दो जनरेट हो गया। इसलिए इसे ऑक्सीजन की निर्भरता नहीं है, यानी इसमें जो एनएडी प्लस अगर वो बंद भी रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूड चल सकता है बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस। लेकिन क्रेब साइकिल नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि इसको 4 चाहिए एनएडी प्लस। ठीक है, फर्मेंटेशन से जो बना एनएडी प्लस जनरेट हुआ वो तो ग्रेप साइकिल ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कंज्यूम कर लेगा, क्रेब साइकिल को सप्लाई नहीं हो सकता उससे, साइटोप्लाज्म में ही कंज्यूम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो एक्स्ट्रा डिमांड है एनएडी प्लस का, वो कहां से फुलफिल होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एनएडी प्लस जनरेट हुआ एनएडीएच से, उससे आएगा। अब वो बंद है, एनएडी प्लस का सप्लाई बंद, अल्टीमेटली एनएडी प्लस विल डिप्लीट इन द मैट्रिक्स, सो क्रेब साइकिल विल स्टॉप इन द एनारोबिक कंडीशन। इसीलिए क्रेब साइकिल एरोबिक कंडीशन में ही चल सकता है, एनारोबिक में नहीं। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक में चल सकता है, कंटिन्यूड हो सकता है, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से एनएडी प्लस उसको वापिस मिल जाएगा। So we have till now seen that glucose. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture, nor the promised large number of ATP has yet been synthesized. Also, what is the role of NADH plus H plus and FADH2 that is synthesized? अब कह रहे हैं हम शुरू से ही बहुत काम का चीज है, एटीपी तो काम का चीज है, एनर्जी करेंसी है, वो आप समझते हो। अब एनएडीएच और एफएडीएच2 जो इतना बना है उससे क्या होगा, क्यों ये काम का चीज, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बार बार बता भी रहे हैं हम पहले से। सो let us now understand the role of oxygen in respiration and how ATP is synthesized. This we will see. And चलो थोड़ा सा और पढ़ने का टाइम है मेरे पास, तो पढ़ना में फिर चैप्टर फिनिश है, लेकिन ये दो चैप्टर पढ़ना समझने के लिए टाइम लगेगा। ओके, अभी तक आप लोग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ चुके हो। नाउ द नेक्स्ट thing is we will study these useful products of TCA cycle and glycolytic pathway, which is NADH plus H plus and FADH2 molecules, which has been generate हुआ था।
एटीपी तो जो बना वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्टोर्ड हो जाएगा, वहां से यूज होगा। अब इससे, इन दोनों चीजों से हमें एटीपी बनाना है। बनाना क्या है? सेल बनाता है। कैसे? यही हम लोग पढ़ेंगे इसमें। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, Krebs cycle. Second phase of the aerobic respiration, where these two molecules will be utilized. And that one is called as electron transport chain and oxidative phosphorylation. Second phase of aerobic respiration, which is electron transport chain and oxidative phosphorylation. So in the next steps, the respiratory process are to release and utilize the energy stored in these molecules NADH plus H plus and FADH2. Okay, and this is accomplished when they are oxidized through electron transport system, and the electrons are passed on to the oxygen, resulting in the formation of H2O. So this saying that it will be oxidized. NADH plus FADH2 will be oxidized in the electron transport chain. Okay. Where the electrons are finally transferred to oxygen molecule, resulting in the formation of water. ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा. Okay. So this electron transport chain is basically taking the electrons, दो इलेक्ट्रॉन को लिया, इससे गुजरा इलेक्ट्रॉन, and then electron has been given to oxygen. This is the process, electron transport chain. यही कह रहा, this is accomplished when they are oxidized. कौन ऑक्सीडाइज हुआ? इलेक्ट्रॉन कहां से आया? जब NADH प्लस H प्लस ऑक्सीडाइज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन वहीं से आए. और इस ऑक्सीडेशन में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा है ऑक्सीडेशन. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called as electron transport system. इसको ETC भी कह सकते हैं या ETS भी कह सकते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. फिगर 14.4.
आपके बुक में ये फिगर दिया है। इसमें कहीं भी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4 ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ है ना? कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारा बुक दूसरा है फिर। तीन तरह की किताब हो गया, मेरे पास एक किताब और है। और वो इससे भी पुराना है वो। कौन ज्यादा पुराना है देखो तो, डेट कब छपा है, सबसे लेटेस्ट वाला देखो। हाँ, 2019 लिखा है, ये 2017 का है। तो इससे वो अच्छा है। ओके, जो इसमें ऐसा फिगर दिया है। ठीक है? लेकिन फिर भी इसमें भी तुम समझ सकते हो। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1। जहां प्रोटॉन जा रहा है, जहां प्रोटॉन जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स 1 हो। ये कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 पर प्रोटॉन नहीं जा रहा है, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ रहा है। दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। तो हम इस फिगर को भी, इस फिगर से भी समझ लो। दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं जो आपके इस बुक में ये फिगर दिया है। देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन। कहां पर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बताया है ना? इसमें कितना रीजन को देख मॉडिफाई कर दिया। दिस इज इनर mitochondrial membrane. This side is matrix. This is inner mitochondrial, inner membrane space. Inner mitochondrial membrane space. Inner mitochondrial membrane space. यानी यह स्पेस, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस। और ये मेम्ब्रेन हो गया एंड दिस साइड इज मैट्रिक्स, ये स्पेस। ओके, अब इस तरह से सब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, मैट्रिक्स में हो रहा है। क्या है मैट्रिक्स में? बहुत सारा एनएडीए, यही क्रेब साइकिल चल रहा था। क्रेब साइकिल चल रहा है मैट्रिक्स में। तो बहुत सारा एनएडीएच है, प्लस H प्लस है, FADH2 है यहाँ पर। तो दिस NADH प्लस H प्लस is oxidized to form NAD प्लस। इस ऑक्सीडेशन में रिडॉक्स पोटेंशियल जो है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स।
निकला NaDH प्लस H प्लस से, बता रहे थे ना ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ये रिडॉक्स पोटेंशियल NaDH प्लस H प्लस, NaD प्लस में समा गया और NaDH प्लस H प्लस बना। और अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये रिडॉक्स पोटेंशियल NaDH प्लस H प्लस से निकल के इस कॉम्प्लेक्स 1 में प्रवेश कर गया, यहां से निकला और NaD प्लस जनरेट हो गया। अब ये NaD प्लस फिर से क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज होने के लिए चला जाएगा भाई, वो दो तीन चारों डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद हो जाएगा तो क्रेब्स साइकिल भी बंद हो जाएगा, इसीलिए। और क्रेब्स साइकिल यहाँ पर चल रहा है मैट्रिक्स में। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल goes through complex 1, okay? This is the complex 1. This complex 1 has many centers in it. FMN लिखा है बुक में, क्या लिखा है उसमें? FMN, iron sulfur centers are also there in this complex 1. So what happens is, यह रिडॉक्स पोटेंशियल जिसमें से प्रोटॉन जो है वह तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाता है निकल के डायरेक्ट, विदाउट इंटरैक्टिंग विथ एनी ऑफ सच सेंटर्स, FMN सेंटर या आयरन सल्फर सेंटर, बिना इनके इंटरैक्ट किए हुए ये आ गया कहा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, एंड इन दिस प्रोसेस वन से दो प्रोटॉन है नहीं, and in this process two protons are transferred। प्रोटॉन तो इधर आ गया, ठीक है? क्योंकि एक जगह बुक में हम पढ़े थे 4 प्रोटॉन्स, तो वहीं से हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, वहां 4 दिया है, यहाँ 2 दे रहा है। ओके, दिस इज 17th NaDH प्लस H प्लस 2 तो ठीक है, उस बुक में 4 दिया है। पुराना बुक में क्या दिया है?
मतलब नए वाले में। हाँ, इसमें भी छोड़ दिया। हाँ, तो हमारा वो पिक्चर इससे मिल रहा है। ठीक है, तो आई फॉलो दिस। ओके, अब समझिए इसको अच्छे से। नाउ द कंफ्यूजन इज क्लियर। फोर प्रोटॉन्स ट्रांसफर हो, और भी प्रोटॉन्स थे पहले, और दो प्रोटॉन इससे NADH से निकले। और भी जो पहले के प्रोटॉन्स थे वो भी ट्रांसफर हो गए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा, मान लो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में जो NADH प्रोड्यूस हुआ था +H+, वो भी आएंगे। मान लो एरोबिक पाथवे पूरा चल रहा लगातार, तो जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में NADH प्रोड्यूस हुआ है, फर्मेंटेशन पाथवे में नहीं गया, तो उस NADH से भी एनर्जी हार्वेस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो जाएगा। NADH जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में प्रोड्यूस हुआ था, तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के कौन कौन से चीज आ रहे हैं? पायरुवेट आ रहा है और NADH भी आ रहा है। तो फोर प्रोटॉन्स हैज बीन ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अपोजिट कंपार्टमेंट। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वह ट्रांस इसके साथ क्या हो रहा है, वह इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंटर से होकर गुजर रहे हैं, फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंटर्स। So I'll indicate it with a different electrons. This electron is passed to FMN से आयरन सल्फर सेंटर, ये वाला, फिर दूसरा आयरन सल्फर सेंटर, यहाँ पर ये ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन। Then this electron is taken by, because this is lipid bilayer, लिपिड बाइलेयर है, यानी लिपिड है, फैट है ये। ओके, फैट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नहीं क्रॉस कर पाएंगे इसको। ओके, इलेक्ट्रॉन्स तो पोलर सब्सटेंस जो होता है उसमें चला जाता है, इसमें डिजोल्व नहीं हो सकता। तो कोई फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो फैट में घुलन, वह इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट नेबरिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, the next neighboring complex is complex 3. In the complex 3, this electron is accepted by, देखोगे लिखा हुआ CYTB है, लिखा हुआ फुल फॉर्म है साइटोक्रोम बी, CYTB है ना, साइटोक्रोम बी। इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी को देने के लिए एक यूबिक्यूटोन है, यूबिक्विनोन है मॉलिक्यूल, जिसको कहते हैं UQ। यह लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास आया, क्योंकि यह लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड में यह मूव कर सकता है। तो यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद यह एक नेगेटिव चार्ज हो गया,
तो यूबिक्विनॉन फिर रिड्यूस होकर के UbQH2 बनाते हैं। नो, चलो इसको पढ़ते जाते हैं और इसको आगे बढ़ते जाते हैं। The following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed on to oxygen, resulting in the formation of H2O. The metabolic pathway through which the electron pass through is called electron transport system 12.4, and it is present in the inner mitochondrial membrane. Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex 1. इस complex 1 को NADH dehydrogenase भी बोलते हैं। complex 1 उसने NADH को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया into NAD+, and electrons are then transferred to ubiquinone located within the inner membrane. तो ये कॉम्प्लेक्स 1 का आयरन सल्फर सेंटर से होते हुए यूबिक्विनोन तक आया। ये FMN और आयरन सल्फर सेंटर्स आर पार्ट ऑफ दिस NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अपने सेंटर से सीरियली पास कराते हुए यूबिक्विनोन को दे दिया। दिस यूबिक्विनोन इज द लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसपोर्ट करेगा यूबिक्विनोन। Ubiquinone also receives reducing equivalents via FADH2 complex 2 that is generated during oxidation of succinate in the citric acid cycle. The reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C. Okay, via cytochrome BC1 complex, that is complex 3. अब समझिए इस बात को कि क्रेब्स साइकिल याद करो, उसमें देखिए फिगर क्रेब्स साइकिल में the steps where FAD plus is converted into FADH2 है ना। इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यह सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, वह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सारे एंजाइम जो है इस एंजाइम के अलावा वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, लेकिन ये एंजाइम जो FAD को FADH2 में रिड्यूस कर रहा है, वह एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड। समझे बात को, उसमें इनकॉर्पोरेटेड है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो FADH2 का प्रोडक्शन, यानी यह स्टेप जो है वह होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर, दिस साइड जो मैट्रिक्स के साइड है। तो और वही एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 भी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। सो लेकिन पूरा मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स नहीं कर रहा है जैसे ये दोनों कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं 1 और 3। ये मेम्ब्रेन में आधा धसा हुआ है, इतना ही बड़ा है, छोटा है, एंड दिस एंजाइम इज कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हम क्या पढ़े, इसको क्या कह रहे हैं हम, NADH डिहाइड्रोजिनेज भी।
है ना, एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। और FADH2 ये हो, और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड द कॉम्प्लेक्स 3 इज यस साइटोक्रोम BC1 डिहाइड्रोजिनेज। वो हम लिखेंगे बाद में, पहले ये समझिए। तो ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम जो है वही कॉम्प्लेक्स 2 है, और वह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड। यह जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला NADH वाला, वह गया यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन रिड्यूस हो गया यूबिक्विनोन UbQH2 में। ओके, ubiquinone also receives 2 electrons from this succinate dehydrogenase। तो एक तरफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज FAD प्लस से FADH2 बना रहा है क्रेब्स साइकिल के स्टेप में, ठीक। और फिर FADH2 कन्वर्ट हो जा रहा है FAD प्लस में, इसी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। जैसे ही FADH2 बना, तुरंत वो फिर FAD प्लस बन गया। समझे बात को? FAD प्लस से FADH2, फिर FADH2 से FAD प्लस, और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, बहुत सारा उसमें सब यूनिट्स है, उसके द्वारा वो कैप्चर कर लिया, और दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन पास टू यूबिक्विनोन। And then ubiquinone is reduced UbQH2। यहां तक समझे? दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। एजेंट कौन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए इस लिपिड में? यूबिक्विनोन, विच इज यूबी। एंड साइटोक्रोम C, B, ये सब साइटोक्रोम जहां लगेगा वो हो गया वाटर सोल्यूबल पोलर पोलर इलेक्ट्रॉन कैरियर कंपाउंड्स, एंड दीज आर नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। दोनों तरह की जरूरत पड़ेगी यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर मूव करने के लिए। कॉम्प्लेक्स पोलर है तो पोलर कंपाउंड की जरूरत है, और कॉम्प्लेक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन कम कैरियर कंपाउंड की आवश्यकता है, जो कि यूबिक्विनोन है। यहां तक क्लियर? नाउ दिस इलेक्ट्रॉन will go to cytochrome B, which is in complex 3। Okay, because ubiquinone is receiving the electrons from FADH2 also, that is complex 2। Okay, and this FADH2 was generated during the cyclic acid cycle. Now the reduced ubiquinone UbQH2 is then oxidized। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर से ये UbQ बन गया ऑक्सीडाइज होके, फिर ये लेके आएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, लेके आएगा, यहाँ साइकिल चलते रहेगा UbQ और UbQH2 का। माथा पर बोझा रख दिया, जाके पटक दिया, फिर चल आया, लेके रखा, पटक दिया। लेबर का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, फिर जाके ले रहा है, दे रहा है। साइटोक्रोम, and then transferred the electrons to cytochrome C। साइटोक्रोम C, B, BC1 ऐसे से बहुत सारे, उस कॉम्प्लेक्सिटी में अभी मत घुसो, सीधा यही साइटोक्रोम C।
via cytochrome BC1. ओके, अरे अब यही डायरेक्ट लिखिए, via cytochrome BC1 complex 3. Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane and acts as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and complex 4. इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी तक पहुंचाना है। साइटोक्रोम सी तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम बी, फिर फिर आयरन सल्फर सेंटर, फिर C1 तक से गुजरना पड़ता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की जर्नी इज लाइक दिस। दिस विल बी रिसीव्ड बाय साइटोक्रोम बी। फ्रॉम साइटोक्रोम बी से सब असेंडिंग ऑर्डर में है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के। दिस आयरन सल्फर सेंटर, देन cytochrome C1, and then cytochrome C. Okay, the proton from here this proton will also enter this complex 3 and it will be exported out. Exported to the inner mitochondrial membrane space. फोर होगा, और भी आएंगे दो। यहां तो दो था, H2 था ना, दो दो निकाल दिए। अब साइटोक्रोम सी के पास फिर एक और, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया साथ में, अलग अलग थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे, यहाँ से ये कंट्रोल जेड होगा क्या? बेकारे मिटा दी। यहाँ पर चूंकि ये बैलेंस नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन FADH2 से भी आया, दो इलेक्ट्रॉन इधर से, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। दो क्यूनोन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो, ठीक है।
यहाँ भी आयरन सल्फर सेंटर से मूव किया और यहाँ पर दो क्यूनोन मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो गए। ओके, तो उसमें से दो, और ये दो दो चार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कर दिए गए बाय दिस सेंटर, बाय दिस कॉम्प्लेक्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस, कॉम्प्लेक्स 3 से। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हम मर्ज किए? आपके बुक में थोड़ा डिफरेंट ढंग से है ना? ये इधर दिखाया हुआ है कॉम्प्लेक्स 2, और कॉम्प्लेक्स 1 के बगल में 3 है, फिर नीचे 2 दिखाया है। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको सुविधा लगे, लेकिन माइंड में समझ लो। अब नहीं समझते तो ये कुछ समझ में आता है तुमको? क्या ABCD लिखा हुआ है, तीर मारा हुआ है, क्या है? सिर्फ ABCDEFGH ये ना लिखा हुआ है, छोटा छोटा सी है और ओके। तो साइटोक्रोम C के पास अब फाइनली कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। अब प्रोटॉन तो इधर आ गया। साइटोक्रोम C से दिस साइटोक्रोम C, यहां थोड़ा मिस्टेक, cytochrome C is not present here inside the membrane, it is present outside the membrane towards the inner membrane space, because this is water soluble polar cytochrome C। और यूबिक्विनोन जो था ये एक्सेप्टर लिपिड के अंदर है, साइटोक्रोम C एक्सेप्टर लिपिड के बाहर। नाउ यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, साइटोक्रोम C से फिर साइटोक्रोम C ट्रेवल किया वहां तक जहां पर कॉम्प्लेक्स 4 है। साइटोक्रोम C कलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन्स को, फिर साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन को लेके आया और उसको डोनेट कर दिया, और खुद साइटोक्रोम C रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, साइटोक्रोम C लिया, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज। अब दिस इज कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 में आपका द इलेक्ट्रॉन हैज बीन टेकन बाय कॉपर एटम। अब आगे यहाँ पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, पढ़ते हैं। The reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C via cytochrome B से C1 complex, that is complex 3। यहां तक क्लियर है? Cytochrome C is a small protein attached to outer surface of the inner membrane and acts as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and complex 4. So it is a water soluble mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and complex 4. पूछेगा व्हाट इज साइटोक्रोम C, बोल सकते हो मोबाइल कैरियर ऑफ वाटर सोल्यूबल मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन which transfer from complex 3 to complex 4. Complex 4 refers to cytochrome C oxidase complex. उसका कॉम्प्लेक्स 3 को हम क्या कह रहे थे, क्या नाम था? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1। क्या ये डिहाइड्रोजिनेज है? नहीं, क्योंकि NADH और FADH को तो ऑक्सीडाइज नहीं किया ना, उसको ये इसी दोनों ने ऑक्सीडाइज किया, इसलिए ये दोनों डिहाइड्रोजिनेज है। और कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं।
और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये एंजाइम का काम कर रहा है। Complex containing this complex is containing cytochromes A and A3 and 2 copper centers. अब इसमें कॉपर सेंटर, आयरन सेंटर से कॉपर सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. So from this cytochrome C, the electron has been accepted by copper center first. How many copper centers are there? 2 copper centers are there. So this is copper A and copper small a. ये दिया. 1 2 लिख लो सबसे अच्छा, आसानी के लिए, आपके सुविधा के लिए 1 2 कर लो. कॉपर सेंटर 1 एंड कॉपर सेंटर 2. कॉपर सेंटर 1 से इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम ए में, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A2, साइटोक्रोम A2 से कॉपर सेंटर 2. तो हाउ इट इज मूविंग? साइटोक्रोम C से आया कॉपर सेंटर 1 में इलेक्ट्रॉन, this cytochrome C से copper center 1. Cytochrome C has taken the electron from complex 3. It has reached near the complex 4, and near the complex 4, cytochrome C has given the electron to copper center 1. Okay? And this copper center 1 is giving the electrons to cytochromes A first, cytochrome A first, and then cytochrome A3. A3 उसके बाद, यहाँ थोड़ा सा गिचपिट हो गया है, समझ लो. कॉपर सेंटर 1 से साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3, उसके बाद कॉपर सेंटर 2. When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in electron transport chain, they are coupled to ATP synthase. Complex 5. ओके, तो इतना तक आज समझ लो. आगे हम कल कॉम्प्लेक्स 5 से स्टार्ट करेंगे. जो एटीपी सिंथेज है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बताए एटीपी सिंथेज, वो कॉम्प्लेक्स 5 ही है, उसे कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं. ओके, सो यहां पर कॉम्प्लेक्स 3 में आपका, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम BC1 complex, this is that NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, ये हो गया आपके. और here at complex 4 which reaction is taking place? कई बार बताया है आपको, half O2 plus 2 protons are giving rise to H2O. ये तो ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो रहा है, साथ ही साथ इस प्रक्रिया में 2 प्रोटॉन्स ट्रांसफर हो गए मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में. तो इस
पूरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान कितना प्रोटॉन हो गया ट्रांसफर, NADH की वजह से कितना हुआ, सॉरी, अगर हम कैलकुलेट करें एक NADH प्लस H प्लस ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, कॉम्प्लेक्स 1 पर 4 हो गया था एक NADH से, और वो हम सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं। तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और वो 4 फिर गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 प्रोटॉन जो ट्रांसफर है हुआ है कॉम्प्लेक्स 3 के द्वारा, इसमें FADH2 का भी कंट्रीब्यूशन है। तो 2 प्रोटॉन यूबिक्विनोन UPH2 से 2 आया, 2 इससे आया था, तो 2 हुआ यहाँ पर इफेक्टिव। ओके, तो 4 प्लस 2 6 प्रोटॉन, और फिर कॉम्प्लेक्स 4 पर 1 2, फिर क्योंकि FADH भी 2 करेगा, उसके बाद सब 2 2 करेंगे, NADH भी 2, तो 4 2 6 2 8 प्रोटॉन ट्रांसफर हो, किससे, NADH की वजह से, NADH की वजह से 4 2 और 2, ठीक है, तो हो गया 4 2 2 8 प्रोटॉन, और FADH2 की वजह से कितने हुए, ये 4 तो नहीं हुआ, यहां पर 2 हुआ, 2, और यहां पर 2 हुआ, 4, तो कौन ज्यादा एनर्जी देगा, NADH प्लस H प्लस, यस, it contributes more towards the ATP synthesis, NADH plus H plus. So students, in the next class we will see the remaining portion of this topic. So till then, take care, bye.